ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिना कामधेनुमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोकाय प्रक्षालित सकलभूतमलकलङ्काय मुनिउपासित तीर्थाय सरस्वती हरितनोदुरिताम् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशुद्धं संश्लेषां परिवर्तनं धर्मसम्बन्धं परिबोधकालं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयं प्रमुख्यानां अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा वृत्तिर्ग्रन्थकारः शिवञ्जनदेवा प्रेरणदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयस्वामिमूर्ति श्रोतारः सावधानतया सर्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोमणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जयधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की अनंतम से परमेश्वरी भगवान की भोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रपर भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की मम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन कमलों महाराजों की द्वादशाग्नि वाणी माता की श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जैन धर्म की तिरुमतिल्यं देवं वन्दिता देववडितपरिपूज्यं वत्समानपेया भव्यजनानन्दजननी। तप का वर्णन चल रहा है। अनशन अमोदर तप के बारे में पढ़ने जाना, चारों प्रकार के आहार का त्याग और अपनी आत्मा में वास करने का नाम विषय कसायों से दो उपवास किया जाता है। भूख से कम भोजन को ग्रहण करना, लोकेशना आदि से रहित होकर के यहाँ अमोदरी नाम का तप है। आज वृत्ति परिसंख्यान तप को कहते हैं। गाथा नंबर 444। एगादि गिहपमानं किं वा संकल्प कप्पियं वरसं। एगादि गिहपमानं किं वा संकल्प कप्पियं वरसं। भोज्यं परशु भुञ्जते वृत्ति प्रमाणं तवोतस्य। भोज्यं परशु भुञ्जते वृत्ति प्रमाणं तवोतस्य। एकादि प्रमाणं किं वा संकल्पकप्पियं विरसन्। भोज्यं परशु भुञ्जते वृत्ति प्रमाणं तवोतस्य। एकादि प्रमाणं किं वा संकल्पकप्पियं विरसन्। भोज्यं परशु भुञ्जते वृत्ति प्रमाणं तवोतस्य। ಯಾವ ಮುನಿಯು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನೀರಸ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆಹಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪಶುವಿನಂತೆ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾನೋ ಆ ಮುನಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನ ತಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ತಪ
ತಪಸ್ವಿ ಮುನಿಗಳು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಲೋಸುಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಕರ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವಿಸಲೋಸುಗ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭೋಜನದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನಾನಿಂದು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ದಾತ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೋಜನ ಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿಯ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನ ತಪ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭೋಜನದ ಆಶೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಧಾರಕ ಮುನಿಗಳು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನುಸಾರ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಶುವಿನಂತೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇಗೆ ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸುಂದರ ತರುಣಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಹಸುವು ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯೋ, ತರುಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಧುವು ಸಹ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನೀಡುವವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಭೋಜನದ ರುಚಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು. ಭೋಜನ ನೀಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭೋಜನ ನೀಡುವ ದಾತಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಭೋಜನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಇಂದು ಪ್ರಾಸುಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭೋಜನದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸುಕ ತರಕಾರಿ, ಅನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸಂಕಲ್ಪದನುಸಾರ ಭೋಜನ ಸಿಗುವುದು ದೈವಾಧೀನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ತಪವಿದೆ. एक आदमी भी माना, जब मुनि आहार के लिए चले तो पहले मन में ऐसी प्रतिज्ञा करे कि आज एक ही घर आहार मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो लौट आएंगे, तथा 2 घर तक जाएंगे। किंबा संकल्पम दर्शन, एक रस के देने वाले के पात्र की प्रतिज्ञा करे कि ऐसा दाता ऐसी रीति से ऐसे पात्र में लेकर के देगा तो लेंगे, तथा आहार की प्रतिज्ञा करे कि सरस मेरे से अमुक अन्न मिलेगा तो लेंगे, इत्यादि वृत्ति की संख्या गणना प्रतिज्ञा मन में विचार कर चले। वैसी विधि से मिले तो आहार ले, अन्यथा न ले, भोजन पशु बनते। और आहार पशु गौ आदि की तरह करे, जैसे गौ इधर उधर नहीं देखता, चरने की तरफ भी देखता है, तस व्यक्ति प्रमाणित होता। उसके वृत्ति परिसंख्यान क्या कहते हैं कि एक गद्दी गिप महा। मुनि क्या करते हैं, आहार लेने के पहले मंदिर में या भगवान के सामने अंजलि को, ऐसी मुद्रा को ग्रहण करते। उस समय में वे संकल्प को ग्रहण करके वहां से निकलते कि इस प्रकार से विधि मिलेगी तो मैं भोजन को ग्रहण करूँ। मतलब मंदिर से निकले तो एक घर है, यहाँ चौराहे पे 2 घर है, 3 घर आगे आगे है, तो ऐसा नहीं, एक घर, पहले घर में अगर विधि मिल गई, वहाँ आहार मिल गया तो वहाँ ग्रहण करूँ तो पहले घर से ही लौट आऊँगा।
नहीं तो दूसरे घर पर जाऊंगा, तीसरे घर पर, या 2 या 3 घर का ऐसा प्रमाण मिल करके, या एक गली जाऊंगा फिर दूसरे गली में नहीं जाऊंगा, इतने ही भर का प्रमाण, ऐसा नियम लेकर के निकलेंगे। ठीक है, किंवा संकल्प या फिर एक रस आदि का वहां भी पहुंच रहे तो नमक, शक्कर, मिर्च आदि का एक रस का त्याग, अब सामने वाले को तो नहीं मालूम है आज महाराज जी का नमक का त्याग है, या आज मिर्च का त्याग है, आज इस प्रकार से खट्टे का त्याग है। और अगर वैसा भोजन मिलेगा बिना उसका, है ना, बिना नमक का है तो लेंगे, अन्यथा लेकर के ऐसे जल वगैरह लेकर के आ जाएंगे। क्या मतलब ऐसा नियम लेकर के चलते थे। फिर दातार का भी नियम लेकर चलते हैं कि दाता ऐसा होगा, हाँ, जिसके लिए ट्रैफिक जल का त्याग होगा, जो बाजार का नहीं खाता होगा, या फिर पड़गाहन में लोग खड़े हैं तो एक कुआरी करना होगी तो मैं वहाँ पर भोजन ग्रहण करूँगा, हाँ, या फिर है सो महावीर भगवान का था ना कैसा नियम था कि उधर से बैल आए, बैल घर से दौड़ा दौड़ा आ रहा हो, उसकी सींग पर गुड़ डाला हुआ, उसकी सींग पर गुड़ समझते हैं बेल्ला, वो बेल्ला गुड़ लगा हुआ हो और पड़गाहन करने वाली के आंखों में आंसू हो। अब ऐसी स्थिति बनी, चंदन बाला महावीर भगवान के लिए पड़गा रही थी और उधर से क्या हुआ, योग पूर्वक क्या हुआ, एक बैल दौड़ता हुआ आया, तो बाजार था वहां पर गुड़ की बेली रखी हुई थी, उसकी बेली के ऊपर में सिंह को मारा और उसके बाद भी भगवान क्या हुआ, लौट गए। दो बार 3 बार देखते हैं, 2 बार एक बार लौट गए तो चंदन बाला की आंखों में आंसू आ गए, बहुत भाव से उन्होंने चौका लगाया। तो जब सारी चीजें तीसरी बार बन करके देखा भगवान ने तो चंदन बाला की आंखों में आंसू थे। तो इस प्रकार से सारी चीजें मिल गई। तो ये विधि का योग है, ऐसे कठिन कठिन नियम लेकर के निकलते हैं। महाराज जी के बारे में यह कथन प्रचलित है कि महाराज घड़ी पहने लोगों से आहार नहीं लेते। अब उस दिन क्या किया ना, घड़ी पहनने से आहार नियम ले लिया, आज घड़ी पहनने वाला होगा तो ही आहार को। अब क्या हुआ कि महाराज परिवहन को निकले और महाराज को निकले तो घड़ी वाला कोई है ही नहीं, घड़ी वाला कोई है ही नहीं, तो महाराज आगे निकल गए। तो जो व्यक्ति जो पढ़ा रहा था वो महाराज तो लौट गए, तो वो वापस ऐसा दुकान, घर के बाहर में दुकान होती है ना, तो अपनी दुकान पर खड़ा हो गया, उठा करके घड़ी को पहन लिया। इतने में मालूम पड़ा कि ऐसा महाराज वापस लौट करके इधर ही आ गए, और वो क्या हुआ, फिर खड़ा हो गया, फिर वो खड़ा हो गया, हे स्वामी नमोस्तु 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 करने लग गया। और महाराज उधर से आए और उसके हाथों में घड़ी देखी और महाराज पड़क गए। उसको तो मालूम नहीं कि क्या विधि है। एक बार महाराज लौट गए और दूसरी बार आए तो पड़क गए, विधि क्या है? तो ये तो लीला उनकी वही जानते हैं। इस प्रकार की जो कड़ी विधि को लेकर के निकलते हैं, रस आदि का त्याग करके, एक घर को आदि का प्रमाण करके निकलते हैं। ये क्यों निकलते हैं कि भाई भोजन के प्रति, आहार के प्रति वृद्धि का, आसक्ति का अभाव हो इसी। और भोजन पशु भोजन और आहार को गौ, महाराज जी को पशु का से तुलना की। जिस प्रकार से गाय को भोजन देते हैं तो क्या होता है, गाय देती है कि कौन दे रहा है, आज युवती दे रही है कि अम्मा दे रही है कि अज्जी दे रही है कि अज्जा दे रहा है, उसको कोई वो तो पात्र में उसका ध्यान रहता है, उधर देखती है कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से मेरी व्यक्ति से जो आहार को ग्रहण करते हैं तस् वृत्ति प्रमाण तब उनके लिए वृत्ति परिसंख्यान का तत्व होता है। तो जो मुनि आहार के लिए जाने से पहले अपने मन में ऐसा संकल्प लेता है कि आज 1 घर 2 घर या 3 घर इस प्रकार से आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूँगा,
और ऐसा आहार मिलने पर पशु की तरह उसे चर लेता है। उस मुनि के वृत्ति परिसंख्या नाम का तप होता है। तपस्वी मुनि धर्म पालने के लिए शरीर की रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीर को बनाए रखने के लिए दिन में एक बार श्रावक के घर की तरफ जाते हैं और विधि पूर्वक भोजन मिलता है तो उसे ग्रहण करते हैं। भाई शरीर रहेगा, शरीर माध्यम खलु तप साधन, शरीर तप का साधन है। अब जब साधन सही रहेगा तो साध्य की प्राप्ति होगी। आपकी गाड़ी खटारा हो, खड़र खड़र घड़र घड़र कर रही है, हॉर्न को छोड़ करके बाकी सब कुछ बज रहा हो गाड़ी में, है तो क्या होगा? ऐसी गाड़ी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? गाड़ी को कंडीशन में जिस प्रकार से रखना आवश्यक है, गाड़ी की साज सामान आवश्यक है मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसी प्रकार से वो तप की साधना के लिए अपनी शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या कह रखे? सारांश यह है कि भोजन के लिए नहीं जीते, भोजन के लिए नहीं जी रहे, लेकिन जीने के लिए भोजन करते, जीने के लिए भोजन। अतः वे भोजन के लिए, जैसे आज मैं भोजन के लिए एक घर या 2 घर या 3 घर जाऊंगा, ऐसे मार्ग पर जाऊंगा, दूसरा मार्ग नहीं पकड़ूंगा, इस प्रकार का नियम लेकर के चलते हैं और शाश्वत भोजन मिलेगा तो ग्रहण। इस प्रकार की वृत्ति परिसंख्या अर्थात मर्यादा को वृत्ति परिसंख्या तप कहते हैं। तब भोजन की आशा से मन को हटाने के लिए किया जा सकता है। तो ये जो वृत्ति परिसंख्या तप है, भोजन की आशा से मन को हटाने के लिए, ये क्षुधा वेदना को जीतने के लिए। तो भाई नियम मिलेगा तो कोई निश्चितता नहीं है। बाकी सारी जगह तो क्या होता है, व्यवस्था होती है निश्चित कि भाई आपके लिए ऐसा ऐसा भोजन बनाया है और आपको आना है, सब कुछ निश्चित है। लेकिन मुनि के लिए कुछ निश्चित होता है, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी। तो ये ऐसी अनिश्चितता इसलिए होती है कि वे भोजन के प्रति इच्छा को जीतने के लिए इस प्रकार की होती है। इस तप के धारी मुनि अपने किए हुए संकल्प अनुसार भोजन को मिलने पर उस पशु की तरह चलते हैं। अर्थात जैसे गौ को यदि हाव भाव से युक्त श्रृंगार किए हुए कोई सुंदर तरुणी घास चरा देती है, गौ नीचे मुंह करके वो उसको ग्रहण कर, वैसे ही साधु भी मुख नीचे किए हुए अपने कर पात्र में कोई भी जो भी आहार कैसा भी दे, उसमें नमक है नहीं है, क्या है, क्या बना है क्या नहीं बना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का विचार किए बिना जो भोजन को ग्रहण करते हैं, यत्याचार में भी कहा है, घरों का प्रमाण करना कि मैं भोजन के लिए 1, 2 या 3 घर आदि जाऊंगा, इससे अधिक घरों में नहीं जाऊंगा। भोजन देने वाला दाता का प्रमाण करना, भोजन देने वाला पुरुष अथवा स्त्री अमुक प्रकार की होगी तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। उसकी निश्चितता करना कि भोजन देने वाला कैसा होगा, अमुक प्रकार की होगी तो ग्रहण करूंगा, श्रृंगार नहीं की होगी तो ग्रहण करूंगा आदि अनेक प्रकार का नियम लेते। ऐसा व्यक्ति ही होगा तो ग्रहण करूंगा। इस प्रकार का प्रमाण करना, भोजन का प्रमाण करना कि ऐसा नीरस भोजन होगा तो इतना ही ग्रहण करूंगा, इस प्रकार का प्रमाण करना यह तथा भोज प्रमाण करना, आज प्रासुक अन्न मिलेगा भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, माण मिलेगा साग सब्जी, इस प्रकार का जो प्रमाण रहता है, इस प्रकार के संकल्प करने को वृत्ति परिसंख्या कहते हैं। संकल्प के अनुसार भोजन योग मिलना देवाधीन, जैसा सोचा वैसा मिल जाना, यह विधि के, यह भाग्य के, यह कर्म व्यवस्था के अधीन है। ऐसा योग होगा तो ही मिलेगा, इसलिए यह तब क्या है, बहुत कठिन। आगे रसद परित्याग नाम के
तप को कहते हैं। गाथा नंबर 447। 446 445 संसार दुख तत्व विशस भविष्यं विचिंत मानवो। संसार दुख तत्व विशस भविष्यं विचिंत मानो जो। नीरस भोजन भुंजई रस चाओ तस सुविशुद्धो। नीरस भोजन भुंजई रस चाओ तस सुविशुद्धो। संसार दुख तट्टो विशस सम विषयं विचिंतमानो। नीरस भोजन भुंजई रस चाओ तस सुविशुद्धो। संसार दुख तट्टो विशस भविष्यं विचिंतमानो। नीरस भोजन भुंजई रस चाओ तस सुविशुद्धो। ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸಂತಪ್ತನಾದ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಾದ ಸಮಾನವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ನೀರಸ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ರಸ ಪರಿತ್ಯಾಗ ತಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರಸಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ರಸ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಥವಾ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆದೆನಿಸುವ ಸ್ನಿಗ್ಧ, ಮಧುರ, ಖಾರ, ಕಹಿ ಮೊದಲಾದ ರಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ರಸ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಎನ್ನುವರು. ಈ ರಸಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ತೈಲ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಅಥವಾ ಖಾರ, ಕಹಿ, ಕಷಾಯ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ರಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ರಸ ಪರಿತ್ಯಾಗವಿದೆ. ರಸ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಮಾದಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಸವಾದ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿರದ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರದ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶೀತಲವಾದ ಬೇಳೆಬಾತ್ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಹೀಗೆ ಬೆರೆಸಿರದ ಕೇವಲ ಅನ್ನ, ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ, ಕೇವಲ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ತರಕಾರಿ, ಒಣಗಿರುವ ಅಚಾಮ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಾಧುವಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿದೆ. जो संसार दुख तट्टो विशस भविष्यं विचिंतमानो। जो मणि संसार के दुख से तप्तमान होकर ऐसे विचार करता है कि इंद्रियों के विषय विष समान है, विष खाने पर तो एक ही बार मरता है और विषय सेवन करने पर बहुत जन्म मरण होते हैं, ऐसा विचार नीरस भोजन भुंजई। नीरस भोजन को करता है तस् रक्ष चाओ सुविशुद्धो। उसे रस परित्याग नाम का निर्मल तत्व होता है। जो संसार दुख तट्टो विशस भविष्यं विचिंतमानो। जो मणि, जो त्यागी संसार के दुख से तप्तमान होते हैं, संसार के दुखों से जिसके लिए छूटने की आशा हो, संसार के दुखों से जो तपित ऐसा विचार करके इंद्रियों के विषय को विष के समान गिनता है, विचार करता है, यह विषय विष समान है, होशियार बन के तो देख ले। ये विषय वो जितने इष्ट लगते हैं, जितने अच्छे लगते हैं, लेकिन यह विषय वो विष के समान है। अरे विष का भक्षण करने से तो एक भाव का नाश होता है। मैं गलती से जहर खा लिया, क्या होगा? ये भाव चलेगा। ये मनुष्य तो
चला जाएगा, इस भाव में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन विषय भी विशेषा है जो भाव का नाश करता, भाव में दुर्गतियों में भटकाता है। ऐसे त्यागी पुरुष विषय को विष की समान जान करके उसका त्याग करते हैं और उसके लिए नीरस भोजन को ग्रहण करते हैं। तस् रस चाव सुख उनके रस परित्याग नाम का निर्मल तत्व होता है। शरीर और इंद्रियों में राग आदि को बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, तेल आदि रसों के त्याग को रस परित्याग। जो घी, गुड़, तेल आदि जो स्वादिष्ट है भोजन, ये इसलिए होता है कि इससे शरीर और इंद्रियों के प्रति राग की वृद्धि होती है। पानी बतासा नहीं, पानी बतासा फुचका होता है ना, फुचका क्या कहते हैं वो, गोलगप्पे, पानी पूरी कितनी अच्छी लगती है नाम सुनते हैं वो पानी आ जाता है। और उसको क्या कहते हैं, पानी पूरी वाले को मिर्च और डाल थोड़ी सी मसाला तेज करना, देखिए कैसी लगता है, उससे पेट नहीं भरता। लेकिन रसना इंद्रिय तृप्त होगी, इंद्रियों विषयों के प्रति राग की वृद्धि होती है। इसके लिए क्या करे मुनि राग रस परित्याग नाम का तप करते हैं कि अथवा अपने को अच्छे लगने वाले स्निग्ध, मधुर, तेल आदि, खट्टा, कड़वा आदि रसों का त्याग रस परित्याग। अपने को किसी को खट्टा बहुत अच्छा लगता है, किसी को तीता, किसी को मीठा, ऐसे रस एक रस बहुत अच्छा है। लेकिन उस रसनायंत्री को जीतने के लिए जो इष्ट हो उसका भी वो त्याग करते हैं, उसे रस परित्याग करते हैं। इन रसों का त्याग क्रम से अथवा एक साथ है, धीरे धीरे एक ही रस का भी त्याग किया जा सकता है या इकट्ठे सारे रसों का त्याग कर सकते हैं। मूलाचार्य ने कहा है दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक का छोड़ना अथवा तीता, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा रस का छोड़ना रस परित्याग है। रस परित्याग इंद्रियों का दमन होता है क्योंकि सभी रस मादक और उत्तेजक होते हैं। रस परित्याग करने से इंद्रियों का दमन होता है, इंद्रियों के विषयों को जीता जाता है, क्योंकि ये सारे रस उत्तेजक होते हैं क्या और की इच्छा लेकर के उत्पन्न होते हैं। फिर थोड़ा लिया तो उसके लिए तृप्ति नहीं होती। किसी को कोई चीज मीठा अच्छा लगा तो भाई अब भी खाया है तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन शाम को फिर उसको इच्छा हो जाएगी। ऐसी इच्छा को जीतने के लिए ये रस परित्याग नाम का तप। इससे साधु को कैसा भोजन करना चाहिए बताते हैं, लिखा है कि जो नीरस हो, कैसा हो नीरस हो, कैसा चौके का भोजन घर वाले लोग कैसा खा के आते हैं, कैसा चौके का न नमक है, न लौकी उबली हुई सब्जी है, न कुछ मसाला है, न तेल है, ऐसा नीरस भोजन को ग्रहण करते हैं। तुरंत बनाया हुआ गरम गरम है, इधर क्या हो रहा है तवा पर अच्छा बढ़िया है, रोटी सिक रही है, सब्जियां गरम है, आके चलते हैं होटल में भी बफे पार्टी में नीचे उनके पैर के नीचे भी वो गरम लगा रहता है ताकि भोजन गरम रहे। ऐसा गर्मा गर्म तुरंत तवे पर से उतरता हुआ ऐसा मुनि आहार चौके में अगर चूल्हा जला भी दिया है, जल रहा है तो अंतराय। ऐसा गरम गरम तुरंत उतरता हुआ भोजन नहीं लेते और ठंडा हो गया हो, शीतल हो गया हो, थोड़ी देर का बना हुआ हो, दूसरा भोजन को ग्रहण करते हैं। अकेला भात, अकेली दो रोटी, अकेला दाल आदि अकेली सब्जी हो, इसको न ग्रहण करते हैं। और कहते हैं कि गर्म पानी में मिले हुए खूब पके चावल, गर्म पानी प्यास
नीर इस तरह के भोजन को साधु करने योग्य है। इस प्रकार से नीरस भोजन। यहाँ पर अपन ने देखा कि रस परित्याग में कि रस का एक रस का या अधिक सभी रसों का त्याग होता है, इसे रस परित्याग कहते हैं। लेकिन पिछले जो तप था वर्ती परिश्रम, उसमें भी तो रस का त्याग नहीं था, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है कि भाई ये जो रस परित्याग नाम का तत्व है, इसमें तो थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा, क्योंकि वो 1 महीने के लिए, साल भर के लिए या जीवन भर के लिए इस प्रकार से मुनि एक निश्चित समय के लिए उसका त्याग करते हैं, तो थोड़े समय के बाद मालूम पड़ जाता है कि महाराज जी नमक नहीं लेते, घी नहीं लेते, ये वो नहीं लेते। लेकिन जो विविध है, जो वृत्ति परिसंख्यान है, उसमें तो सामने वाले को कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों में अंतर रहता है। अब विविध संज्ञासन नाम का तप का कथन करेंगे। समय हो गया है, आज यही तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की अनंतरम से परमेश्वरी भगवान की, मूलनाथ काशीनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनाथ महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन मंगल महाराजों की, द्वादशांजन स्वामी माता की, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की, जैन धर्म की पूजन और साधन महाराज की